अगर आपके कुछ सवाल हैं तो अभी और। जयराम सर। हाँ जी, नहीं एक मिनट जी, इस साइड से, क्योंकि आलोचना होती है कि हमें। हाँ, yes sir. राइट विंग Sir, दक्षिण। yeah, sir. So my question is that there is an allegation, there is a statement that is coming in from the TMC saying that in every election, the TMC tries to block the BJP, and now at the national level, it is not Congress but the TMC that should in fact be appreciated and should be pushed forward to defeat BJP. How does the Congress sees this statement? We are discussing Jharkhand and Maharashtra. To the best of my knowledge, TMC is not a player in either of these two states. But they should be the player now is what the... We are discussing, I don't want to discuss issues that are not of great relevance to the issue that we are discussing, which is the election results. अच्छा जयराम जी, अभी आप लोगों ने कहा कि झारखंड में ध्रुवीकरण की राजनीति हारी है, लेकिन महाराष्ट्र में फडणवीस भी यही बात कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही थी और वहां वो इसलिए हारी है। कौन कर रहा था? थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, अब मुझे नहीं लगता देश में किसी को भी ऐसा कोई कंफ्यूजन है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है। 75-76 साल में अगर 54 साल 7 महीने हम सरकार में रहे हैं तो कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि ध्रुवीकरण करके तो नहीं रहे होंगे। सबका वोट मिलता है तभी हम जीते। और जैसा कि जयराम जी ने कहा, हमारा जो समावेशी जो हमारी विचारधारा है और समावेशी नीतियां हैं, उससे कतई कोई समझौता नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि धारावी में कांग्रेस 24,000 वोटों से जीती है। अगर किसी को बहुत खुशी हो रही होगी कि हमारा धारावी का प्रोजेक्ट हो जाएगा अब तो मैं बता दूं धारावी के लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। सर अब पूछ लो। मैं ये भी कहूँगा कि अगर जातिगत जनगणना की मांग को ध्रुवीकरण के साथ जोड़ा जाता है, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। जब हम ध्रुवीकरण की बात करते हैं, ज़्यादातर हम धर्म के आधार पर जो समाज को बांटा जा रहा है, ध्रुवीकरण करने की प्रयास की जा रही है धर्म के आधार पर। और जो आलोचना की जा रही है कि जब हमारे नेता, खास तौर से राहुल जी, कांग्रेस अध्यक्ष जी, जाति जनगणना की बात उठाते हैं, वो समाज का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ ये सही है। ये मैं समझता हूँ संविधान का अपमान है, संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान है कि जातिगत जनगणना की मांग को ध्रुवीकरण से जोड़ा जा रहा है। सर अब पूछ लो। सर जयराम सर इधर से भी। एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट। धीरे धीरे वहां, धीरे धीरे लेफ्ट राइट से सेंटर। You have, attacked no less than the Election Commission on electoral rolls. You have said various other acts of omission and commission on the Election Commission. Who stopped you from raising these issues, taking it up if the referee was not fair? What did you do, and why are you now blaming it after the entire match is over, that the referee is wrong? Well, during the match also, we kept approaching the Election Commission. Wait, just a minute, I know what you're saying. So we kept raising this issue. Mind you, my friend, I know you belong to a particular channel, but I'll still say it in response to your question. Just as nobody believed us when we spoke about Mr. Gautam Adani, now that the DOJ, now everybody is barring one channel, everybody is talking about it. Similarly, a day will come when all that is happening in the name of elections in this country will be exposed. And I hope that day comes sooner than later. यही सवाल था। We made numerous complaints to the Election Commission during the campaign. Okay? So it's not true to say that we did not approach the Election Commission. But I think, this word that I keep hearing, that the BJP won Maharashtra because of micromanagement. This word micromanagement is a euphemism. It's a, it's a nice way of saying ground level manipulation.
Micromanagement is equal to ground level manipulation. And this is exactly what has happened. Targeted. Each one of our leaders has been targeted. People who have been winning election after election after election, against whom there has not been any question mark. Models of integrity, models of efficiency. People who have been senior ministers, former chief minister. It's a targeted manipulation. So this micromanagement, you can say it's micromanagement, but at the ground level what is happening, and the administration is theirs. The administrative machinery is controlled by them, by the BJP in Maharashtra. And the BJP stakes in Maharashtra are the maximum. There is no state in India where the stakes of the BJP is as much as it is in Maharashtra. Not only the stake of the BJP, but also the stake of the BJP and the PM's favorite business group. कहने का मतलब ये है, हिंदी में भी बता दूं, कि जो नगर सेठ हैं उनके भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुंबई में ही है। पवन जी, मेरा भी सवाल वही था कि ये पब्लिक मैंडेट नहीं, अगर मैनिपुलेटेड मैंडेट है महाराष्ट्र के संदर्भ में और ज्यूरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसको कुछ लोग थ्योरी ऑफ लिमिटेड डेमोक्रेसी भी कह रहे हैं, तो कब तक जो विपक्षी पार्टियां हैं चुनाव के परिणाम के बाद इसका विश्लेषण करेंगी? क्या वक्त आ गया है कि विपक्षी पार्टियां अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ये तय करे कि अगर ये फ्लॉड सिस्टम है तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है? आपका सुझाव अच्छा है, चर्चा करेंगे इस सुझाव पर। सर जयराम सर इधर से मौका दे दीजिए। लेफ्ट। ये मैं आपको एक जवाब दूंगा। ये लॉ जो हो गया है ना, फ्लॉ बन गया है। और सही जवाब आपने उठाया। सारे विपक्ष पार्टियों को एक होकर एक आवाज में अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए आपको याद होगा, हम इंडिया जनबंधन के पार्टियों ने लगातार 10-11 महीने तक हमने कोशिश की इलेक्शन आयोग से मिलने की, वीवीपैट के मसले पर। हमें समय नहीं मिला, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हमने एक दस्तावेज भी सौंपा इलेक्शन कमीशन को, पर कभी इस मामले पर हमें मौका नहीं दिया गया। तो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चुनाव हम लड़ते रहेंगे। कभी जीतेंगे जहां लेवल प्लेइंग फील्ड है, और कभी हारेंगे जहां टारगेटेड निशाना बनाया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़े। जैसा कि अभी सबसे लेटेस्ट इसका नमूना मिसाल है महाराष्ट्र। हाँ जी सर, जयराम सर, लेफ्ट, आई कम बैक। हेलो सर, यही जो सवाल आपसे पिछले दो किए गए हैं। जी सर, शुक्रिया। सर, यही जो सवाल आपसे पिछले दो किए गए हैं, आपने हरियाणा के नतीजों को तंत्र की जीत बताया था, आज महाराष्ट्र के नतीजों को षड्यंत्र बताया है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोग निर्णायक तौर पर इस षड्यंत्र, तथाकथित षड्यंत्र जो आप कह रहे हैं, इसके खिलाफ निर्णायक तौर पर आप लोग क्या करने वाले हैं? आपकी क्या रणनीति है, या सिर्फ ये एक रस्म है जो आप रिएक्शन दे करके हर बार हरियाणा के बाद छोड़ दिया, आज आप महाराष्ट्र के बाद छोड़ दे रहे हैं? और हमने देखा कि राहुल गांधी वायनाड में ज्यादा सभाएं कर रहे थे, जबकि वो एक उपचुनाव था और नतीजे भी लगभग स्पष्ट थे चुनाव वोटिंग से पहले ही, लेकिन महाराष्ट्र पर उनका फोकस कम था। उन्होंने वायनाड में ज्यादा सभाएं की, महाराष्ट्र पर कम सभाएं की। इसका क्या स्पष्टीकरण है कांग्रेस के पास? क्या इसकी वजह से ये नहीं लगता कि खराब है? झारखंड में कम से कम 4 बार तो मुझे याद है कि राहुल जी की विजिट झारखंड में हुई थी। नहीं, मैं कर रहा हूं, महाराष्ट्र में भी लगातार उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले से शुरू किया। ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि वहां गए यहां नहीं गए, ये मुझे लगता है एक गलत आकलन है। नंबर 1 जो आपका सवाल था कि हम मुद्दा ये चुनाव की पारदर्शिता का उठाते हैं और छोड़ देते हैं, हमारा जो तपस्या है, पहली तपस्या मीडिया से है। आप जिसको मास्टर स्ट्रोक की उपाधि देते हैं, उस पर थोड़ा सवालिया निशान भी लगाना शुरू कीजिए। जैसे जयराम जी कह रहे थे माइक्रो मैनेजमेंट, ये क्या मुद्दा है, ये क्या है माइक्रो मैनेजमेंट? इसको आप भी जरा थोड़ा, आप लोगों की भी इसमें सहायता चाहिए होगी हमें। मैं तो खुलकर आपसे ये मांग रहा हूं कि आपकी सहायता चाहिए होगी। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, उतनी ही आपकी भी है। हम सब स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, तो इसमें थोड़ा एक कदम अब आप भी बढ़ाइए तो उचित रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा।
सर आप ही के सवाल है ना? सर, जैसे पिछली बार आपने हरियाणा के बहुत सारे उम्मीदवारों ने, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आपसे शिकायत की कि ईवीएम की काउंटिंग में गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में आपके जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी या जो अलायंस के उम्मीदवार है, क्या उनकी तरफ से कोई बड़ी संख्या में ऐसी कोई शिकायत आई है, या आप पॉलिटिकल रिव्यू करेंगे हार का, या टेक्निकल रिव्यू करेंगे? जैसा अभी आपको बताया, ईवीएम जिम्मेदार है इस बार हार के लिए। जैसा अभी आपको बताया कि इलेक्टोरल रोल्स, वोटर्स लिस्ट, उसकी शिकायत तो आज से 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले कर दी थी, जवाब नहीं आया। ऐसे ही हमारी जितने भी गठबंधन के हम सदस्य हैं, सब अपना अपना विश्लेषण करके अभी तो रिजल्ट आ ही रहे हैं, जो भी होगा वो आपसे भी साझा करेंगे और चुनाव आयोग तक भी जाएंगे, और जो भी हथियार हमें अपने बदलने होंगे तो बदलेंगे भी। सर आपका सर शिकायतें आ रही हैं, मैं सीधा जवाब दूंगा। शिकायतें आ रही हैं, अभी और वक्त लगेगा। आपको याद होगा हरियाणा में जब नतीजे निकले थे 8 तारीख को, करीब 1.5 दिन लगे थे सारे शिकायत आने में, और हम चुनाव आयोग को गए। तो ये शिकायतें आ रही हैं, 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आने शुरू हो गया है हमारे सेंट्रल वॉर रूम में, और कल तक मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे पाऊंगा किन किन सीटों में, कितने सीटों पे शिकायत आई हैं। पर शिकायतें ज़रूर आ रही हैं। सर आपके एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में भी सीडब्ल्यूसी के आप लोगों ने कहा था कि बैलेट पर जाने को लेकर के आप लोग जो है उस पर एक काम करेंगे। क्या अब कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों को लामबंद करेगी? क्योंकि अगर आप मानते हैं कि टारगेटेड तरीके से नतीजे आते हैं, तो कब तक आप हारने के लिए चुनाव लड़ते रहेंगे? इस पे एक आम सहमति बनानी आवश्यक है तमाम विपक्षी दलों के बीच में। आप सबके साथ भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, सबको मिलकर इसमें एक आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। हमारा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग वैसा नहीं है जैसा मोदी जी का है कि जो मन में आया कर दिया, रात को 12 बजे ताली बजाई, नोट बंद, ऐसे सब नहीं कर सकते हम लोग। तो हम आम सहमति बनाने की दिशा में ही ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। जब हम सवाल उठाते हैं तो इसीलिए उठाते हैं कि इन मुद्दों पर भी डिबेट हो, लोगों के बीच में चर्चा हो, मीडिया में संवाद हो, आपस में हम सबका भी इसमें चर्चा हो, तब जाकर कोई एक निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे। सर मेरा सवाल, आपने मास्टर स्ट्रोक की बात की, तो इस चुनाव में देखा जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक चल रहा है, मैया योजना, बहन योजना, इससे पहले महतारी योजना। आपको लगता है कि इसकी काट आप ढूंढ पाएंगे? ये भी मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इसका फायदा आपके अलायंस को भी हुआ है। हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र में अब कोई बहानेबाजी ना हो, जैसे कि ये योजना की घोषणा करने के बाद ही चुनाव आयोग से ही रुकवा दी गई। जो मोदी युक्त महंगाई है, उस महंगाई की काट वेलफेयर में है और उसकी आवश्यकता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, न हम डिबेट इस पे कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये अस्वाभाविक है, अप्रत्याशित है कि 148 सीटों में से 132 सीटें उस पार्टी को मिल रही हैं जिसको 4 महीने पहले मोदी जी के नाम पे ठुकराया गया। जिस जनता ने, वही जनता उनको अब इतना ज्यादा दे रही है। तो ये मोदी जी के लिए भी चिंता का विषय है और बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय। सर, एक नारा दिया गया, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। को लगता है इसका इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने जब ट्वीट किया है नतीजों को लेकर, उसमें भी उन्होंने इन दोनों नारों का जिक्र किया। को लगता है कि इम्पैक्ट हुआ महाराष्ट्र चुनाव? जिस व्यक्ति ने ये नारा दिया वो बीच प्रचार के छोड़ के चले गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि इन नारों का इस देश पे कोई प्रभाव पड़ता है। ये नारे चलाए जाते हैं, फिर ये तथाकथित, जैसा कि सर ने कहा, माइक्रो मैनेजमेंट की जाती है, तथाकथित माइक्रो मैनेजमेंट की जाती है। अगर ये नारा चलना होता तो झारखंड में भी चलता, जहां इन्होंने सबसे ज्यादा, आदित्यनाथ जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस तरह की बातें बहुत की थी। तो ये मैं नहीं मानता, और हम सबको इस देश की आत्मा पर भरोसा है कि इस देश की आत्मा इस तरह से बांटी नहीं जा सकती। ये वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई, 79 सीट्स में घपला किया गया था वोट फॉर डेमोक्रेसी। फिर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पर भी उनकी रिपोर्ट आई, उसके बाद एडीआर की भी रिपोर्ट आई थी। लेकिन आपने एक फॉर्मल एक ब्रीफिंग की थी वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट पर जब आई थी, उसके बाद आपने इसको सीरियसली लिया नहीं। अब आप उसका नतीजा भुगत रहे हैं, ऐसा लगता है सर। सवाल क्या? सवाल यही है कि वो रिपोर्ट को जो है आपने सीरियसली लिया नहीं। जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सब गड़बड़ जो किया है,
वो जो सीटें हैं 79 सीट्स वगैरह का जो था मामला। नहीं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन है, इसमें सवाल अभी मेरी भी नहीं मिला। ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी की तरफ से जब आप आज ये अगर हम बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, जी, चुनाव के पहले भी उठा रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग में भी जा रहे हैं, लगातार आपसे भी इस तरह की बातें चर्चाएं कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि इस पे एक आम सहमति बनाई जा सके, एक प्रेशर सरकार पर आ सके, चुनाव आयोग पर आ सके, सोता हुआ जमीर उनका जाग सके। Sir, some of your Maharashtra Congress leaders have also expressed a concern that... एक मिनट। जब मैंने कहा कि जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, हम उठाते रहेंगे, उसमें मैं मणिपुर भी जोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा जाति जनगणना, संविधान की सुरक्षा, 50% आरक्षण की सीमा, मोदानी, मणिपुर भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो महाराष्ट्र के नतीजे से अचानक उड़ नहीं गया, कहीं बाहर निकल नहीं गया है। तो ये मानना कि जो मुद्दे हम उठाए थे महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त, अभियान के वक्त, वो मुद्दे अभी नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। ये मुद्दे हैं और ये मुद्दे रहेंगे। Sir, a concern is being raised that during the seat sharing formula when it was getting decided, Uddhav Thackeray-led Shiv Sena was quite aggressive about it, and they have got those particular seats where the Congress party was having a stronghold. Do you also believe that there were some mistakes which have happened at that point of time, and that is one of the reason why the Congress party is not being able to perform well? See, I don't believe in instant analysis, okay? Only coffee can be instant, and analysis cannot be instant. So everybody has theories. I'm sure when the state level leaders will speak to the Congress President this afternoon had a word with the General Secretary concerned of Maharashtra, Mr. Ramesh Chennitala, and I'm sure in the next 24 hours, 36 hours, there will be a meeting where all these issues will be discussed. But you know, it's very easy to be wise after the event. The fact is, we had an alliance. We had three-party alliance, we had seat sharing, there were differences which were resolved, we fought unitedly, but we were up against a machine which was manipulating on the ground. We were up against a machine that had targeted, deliberately targeted, seat after seat after seat. I can tell you, I don't want to take any names, but total non-entities have won from the BJP. Total non-entities. But you, 1 minute, let me finish. Total non-entities have won. And senior Congress leaders, senior NCP leaders, senior Shiv Sena UBT leaders have been targeted. So I think this is, you know, this is targeted defeat. Target and defeat, and then call it micromanagement. Sir, that it cannot be across the board, that you can target just like that. There has to be, that means that you should have gone to the Supreme Court against whatever. It is targeting, they have targeted every seat that the BJP is contesting. That is what they have targeted. They have targeted 148 seats. सर, आप मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल शायद कभी भी पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में तालिबानी सजा दी जाती है, बीच चौराहे पर दी जाती है महिलाओं को, और साथ ही चुनाव में देखिए कई सारे ऐसे ईवीएम की बात हो या फिर हिंसा हो, लगातार हिंसा की चीजें दी जाती हैं। मुद्दे को उठाने का हम उठाएंगे। नहीं, वहाँ भी ईवीएम का मुद्दा होता है, वहाँ भी मसला है। अब मणिपुर के मुद्दे हम उठाते रहेंगे और परसों से हर राज्य का उठाइए ना, आप तो राष्ट्रीय स्तर के कल सर्वदलीय बैठक होने वाली है, उसमें भी हम ये मुद्दे उठाएंगे। मोदानी का मुद्दा उठाएंगे, मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, महंगाई का मुद्दा उठाएंगे, और हम उठाते रहेंगे, और जब पश्चिम बंगाल का वक्त आएगा हम उठाएंगे। जयराम सर, इस साइड सर, ऑन योर लेफ्ट। सर, आप कांग्रेस का ऑफिशियली अब स्टैंड क्या है ईवीएम को लेके? क्योंकि आप हरियाणा के बाद भी ईवीएम में कोई फॉल्ट है, आप अभी कहते हैं। दूसरी चीज ये, 2018 के प्लेनरी सेशन में आपके पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आपने ये बात कही कि बैलेट पेपर पर हमें वापस जाना चाहिए।
तो अब क्या आप आपको लगता है कि उस चीज के ऊपर आप दोबारा वापस आएंगे, या आप इसी बात पे लगता है कि ईवीएम कोई भी राजनीतिक दल एक लोकतंत्र में बंद कमरे में बैठकर स्टैंड नहीं ले सकता, न लेना चाहिए। आम सहमति बनाकर निर्णय लिए जाते हैं। आम सहमति बनाने की प्रक्रिया यही होती है कि आपसे भी चर्चा करना, सिविल सोसाइटी से चर्चा करना, आपस में बाकी विपक्षी दलों से चर्चा करना, लगातार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर देखना कि वो जाग भी रहे हैं, क्या वो सजग हैं जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उन पर। उसके बाद जब वो दरवाजे नहीं खुलते तब लोगों के बीच में जाना। ये आसान सफर नहीं होता, ये संघर्ष आसान नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता कि आज निर्णय ले लिया और कल लागू हो गया। इसमें समय लगता है और समय लगेगा। ये सिर्फ मशीन का मामला नहीं है, ये प्रक्रिया की मामला। प्रक्रिया में मैनिपुलेशन हो रहा है। सर, दिस इज सुचंद्रमा फ्रॉम IANS। एक सवाल। नॉट ऑन वेस्ट बंगाल। नो, नॉट ऑन वेस्ट बंगाल। 2 राज्यों में, एक में हार एक में जीत। एक में ईवीएम ने जिता दिया तो दूसरे में हरा दिया। तो गठबंधन एक जगह जीत गई, दूसरी जगह क्यों हार गई? तो आपसी ये जो निजी सीट शेयरिंग को लेके प्रॉब्लम थी, ये अगर सुलझा लेती तो कांग्रेस ने हरियाणा से क्यों सीख नहीं ली? मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि यही आर्गुमेंट इस्तेमाल की जाती है भाजपा द्वारा। अरे आप झारखंड में जीत गए फिर भी बोल रहे हैं चुनावी प्रक्रिया पर। जी हां, फिर भी बोल रहे हैं। झारखंड में जीतने के बाद भी बोल रहे हैं। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलती है वहां हम जीत के दिखाते हैं। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड भाजपा को लगता है अगर दे दी तो उनका और उनके नगर सेठ का भारी नुकसान हो जाएगा, वहां वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद मीडिया में ऐसी थ्योरीज डाली जाती हैं कि साहब उनमें ना आपस में समन्वय नहीं था, उनमें सीट शेयरिंग। आपको मालूम है, आप तो बंबई आई होंगी चुनाव में, मुंबई में आई होंगी, आपको पता है कि देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स और होर्डिंग्स से अमित शाह गायब थे। पूछा आपने कि समन्वय क्यों नहीं था? आपस में पार्टी के भीतर समन्वय नहीं था। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे गठबंधन में समन्वय नहीं था। पवन, एक सवाल इधर है। एक रिपीटेडली दीज क्वेश्चंस ओके सर, झारखंड में जीत की आपको सबसे पहले तो बधाइयाँ। सरकार में अब आप लोग किस तरह का योगदान चाहेंगे जीएमएम के साथ, क्योंकि आप लोग ने भी 50 सीटों पे कॉन्टेस्ट किया था, मोर देन हाफ आप लोग जीते हैं। सो अब आप लोग का आगे की क्या रणनीति है झारखंड के लिए? सर, ये गठबंधन होता है और गठबंधन का एक धर्म होता है। गठबंधन के धर्म में जो भी दोनों पार्टी आपस में तय करती हैं, दो नहीं वहाँ और भी हैं हमारे गठबंधन के सदस्य, वही होगा। उसमें हम यहाँ बैठकर खुद ही सब कुछ बोल दें, गलत होगा। वो गठबंधन के धर्म के विपरीत होगा। Yeah, what I was asking, that repeatedly these questions are coming on what you're doing on EVMs, because we don't see a single dharna, pradarshan, protest, chakka jam by the Congress party, but we do hear you sitting on this platform and telling us what a raw deal you've had. So beyond that, no. And have the alliance parties of India Alliance ever discussed this issue of EVM? And where is the report of the Haryana defeat that we were told you never accepted the Haryana defeat? There is no review, no report, nothing that you could, we say that this is what happened. So, we are repeatedly being told things again and again without the... My question is that the party beyond a point has, except for mouthing certain platitudes, has not said anything. No, I said, why are you not doing dharna, pradarshan, etc.? So I'll respond to the first part of the question, and the second part, Mr. Jairam Ramesh will. Observations, no. So, in the long struggle for independence, nobody expected that by one Quit India movement we'll get independence. It was a series of various steps that were taken, various layers of Andolan that we had done as a party, as a movement. Any such challenge cannot be met by one dharna, one pradarshan, one press conference, one resolution, or one appeal to the election commission. It's a series of steps. We have to build a consensus amongst our own alliances. We have to create a consensus amongst the media first of all. How many stories, I can also turn around and ask you, how many stories have you all done investigating EVM? Some of you have done, independent journalists, I keep reading them.
So these are efforts that need to be done together, jointly. We are all stakeholders in a democracy. We are not the only ones, you are not the only ones. All of us owe it to the democracy. Sir, my question is for Pawan Khera, sir. You have mentioned about the Adivasis and the Janjathi. So I, being from a Nagaland, a tribal girl, do this result signal any shift in voter sentiment towards the Congress party? Well, we are yet to analyze seat-wise results, but yes, Jharkhand in particular gives us a lot of hope that the polarizing narrative of the BJP is not working in Jharkhand, and it will not work. Increasingly, you will see it will not work in the rest of the country also. Tribals of India have shown the way to the rest of the country always, and they will show the way again. और कोई सवाल? शुक्रिया।